Assalamu alaikum students. My name is Suhail Aziz. My qualification is MCOM, ACCA, MPhil, and now I am PhD scholar. And I am teaching in ISP as permanent faculty member since 2017. The subject that we will discuss today is tax policy and management. First of all, we will discuss the contents of the lecture. This is the contents of the lecture that we will discuss today. First is what is tax. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है. Next, we will discuss a different definition of income tax law, जिसके अंदर आएगा what is accumulated profit, what is a pilot tribunal, what is approved gratuity fund, what is approved superannuation fund, what is assessment year, what is agriculture income, what is board, and what is business, and what is company. These are all the definitions that we will discuss today. Tax policy and management for the first lecture. First of all, what is tax? Tax क्या है? This is a tax is a compulsory contribution to state revenue levied by the government on workers' income and business profit. Tax है क्या? Tax is a compulsory contribution, not in lieu of benefit that you will receive in the future. ये नहीं कि मैंने यार टैक्स पे किया है और गवर्नमेंट वाले मुझे फायदा दे, मेरे घर के आगे रोड बनाए. टैक्स ये नहीं होता. A compulsory contribution not in lieu of benefit that you will receive in the future. इसमें ये नहीं कि आज मैंने टैक्स पे कर दिया और इसका मुझे फ्यूचर में लाजमी बेनिफिट मिले. और ये नहीं होता. टैक्स दिस इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है. अब उसके अंदर क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको फर्दर एक्सपेंडिचर अपने को कर रही होती है, जैसे रोड्स बना रही होती है, पुल बनाती है, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है फिर उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर अपने करती है इससे. Next, what is direct tax? Direct tax is a tax which, such as income tax, which is levied on the income or profit of the person who pays rather than on goods and services. Direct tax क्या होता है? That is income tax, जो कि डायरेक्ट आपको पे करना होता है, आपकी इनकम और आपको ही पे करना. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगता है किसी और पे पे आप कर रहे होते हो, जैसे चीजों के सेल एंड परचेज के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करते हो या सेल करते हो, उसके ऊपर जो लग रहा होता है वो टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स. Next, the purpose of taxation is to finance government expenditures. So tax देखा जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि पर्पस टैक्स का है क्या? टू फाइनेंस. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रही होती है. आप लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है, फिर उसे क्या करती है? पुल बनाती है, जैसे हमारा ये मेट्रो बना हुआ है, ये क्या है? तमाम गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करती है टैक्स के मदद से, उसको आगे फिर खर्च कर रही होती है. तो टैक्स इज अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट और इनकम और एक्टिव. जाहिर बात है गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर, आप हर चीज के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं. जो भी चीज बाजार से परचेज उसके ऊपर टैक्स को पे कर रहे होते हो आप. चलें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज अकमुलेटेड प्रॉफिट. अकमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, अकमुलेट मीन इकट्ठा करना, प्रॉफिट का इकट्ठा होना. A portion of the profit which is retained by the company, that is accumulated profit होता है, और the portion of the profit which is distributed to the shareholder is called dividend. प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि कंपनी अपने पास रखती है, उसे इकट्ठा करती है, that is called accumulated profit and it is also called retained earnings. accumulated profit को हम retained earnings भी कहते हैं, यानी ऐसी earnings जो कि कंपनी रिटेन की जा रही है, और कंपनी अर्निंग्स का वो पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू द शेयर होल्डर, that is called dividend. Portion of the profit which is retained, that is accumulated profit, or portion of the profit which is distributed is dividend. चले, accumulated profit mean any reserves maintained by a business out of its profit. जैसे मैंने भी कहा है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि कंपनी मेंटेन कर रही है एज अ रिजर्व के तौर पर, दैट इज accumulated profit. सेकंड वो कह रहा है all profits of the company up to the date these are distributed. कंपनी के वो तमाम प्रॉफिट जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, वो क्या होता है? हमारा अक्यूमुलेटिव प्रॉफिट होता है अप टू द डेट. देन उस डेट तक जब तक कि वो डिस्ट्रीब्यूट ना, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो डिविडेंड भर देता है, प्रॉफिट का वही पोर्शन. फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात, द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड. Next, then these profits kept in whatever shape will be treated as accumulated profit until their distribution to the shareholder. तो वही वाली बात जो भी मैंने बताई, जब तक वो शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता तो वो हमारा क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वो कह रहा है many businesses prefer to set aside a portion of earned profit for future use. कंपनी क्या करती है? जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करती हैं उसको एज अ पोर्शन रख लेती हैं साइड पर, कि क्यों? हमारे फ्यूचर ग्रो के लिए काम आएगा. अगर तमाम अपनी अर्निंग्स खर्च कर देते हैं तो फ्यूचर में ग्रो कैसे करेंगे? ठीक है. इट मे बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन फ्यूचर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स. ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स.
वो यही कह रहा है कि आया कि एक कंपनी इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख लेती है या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट को। चले नेक्स्ट वो कह रहा है अपैलेट ट्राइब्यूनल क्या है। अपैलेट ट्राइब्यूनल ऐसा मैं आपको इसके समझ बताता हूँ, दिस इज अ हाई लाइक हाई कोर्ट, जहाँ पे हमारे टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट का ना आपस में जब भी कोई झगड़ा होता है तो वो यहीं पे सॉल्व होता है। जैसे हमारा और किसी और क्लाइंट का झगड़ा आपस में होता है, हम किधर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से सॉल्व होता है, हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस तरह टैक्स वालों की भी एक जो अदारा है उसको हम कहते हैं अपैलेट ट्राइब्यूनल। कोई भी डिस्प्यूट होता है हमारा और टैक्स डिपार्टमेंट का, वो कहाँ पे सॉल्व किया जाता है, अपैलेट ट्राइब्यूनल। अब इसको यहाँ से रीड करते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट एन अपील कैन बी मेड टू अपैलेट ट्राइब्यूनल। वही वाली बात, जब भी हमारा झगड़ा होगा हमारा और टैक्स डिपार्टमेंट का, हम कौन है, टैक्स पेयर है, तो कहाँ पे सोल्व किया जाएगा, अपैलेट ट्राइब्यूनल में। दिस इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, ये क्या हमारी हायर जुडिशियल अथॉरिटी जो कि इस मैटर को सोल्व करती है। It consists of judicial as well as accountant member। इसके अंदर LLBs कानूनदान भी होते हैं, जुडिशियल जज वगैरह, और इसके अलावा इसके अंदर अकाउंट्स मेंबर्स भी होते हैं। The members are appointed by the federal government। उनको कौन अपॉइंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है the decision of the tribunal on point of facts is final। जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता है ना वही फाइनल होता है, कि जो ट्राइब्यूनल ने फैसला कर दिया वही फाइनल है। इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ द मैटर मे बी रेफर टू द हाई कोर्ट। इसके अलावा और भी कोई कानून का ऐसा कोई इशू है, कोई भी ऐसे पॉइंट है जो कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसको हम रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है व्हाट इज अप्रूव ग्रेजुएट फंड। इससे तो आप पहले भी वाकिफ होंगे। अप्रूव ग्रेजुएट फंड जैसे कि हम गवर्नमेंट इदारों के अंदर सुनते हैं कि आदमी जब भी कोई रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के ऊपर इकट्ठा पैसा दे दिया जाता है उसके फ्यूचर यूज के लिए, कि रिटायरमेंट के बाद अपना कोई भी प्लान करता है किसी भी किस्म का, तो उसके लिए वो फंड वो यूज कर सके आफ्टर रिटायरमेंट। अब इसको यहाँ से रीड करते हैं। द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ग्रेजुएटी फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय। जाहिर बात है वो आप उसके तनख्वाह से डिडक्ट हो रहा होता है और एट द एंड जब वो रिटायर होता है तो उसको उसके पेमेंट कर दी जाती है एज अ ग्रेजुएटी फंड के तौर पर। ये गवर्नमेंट अदारों में भी तो और प्राइवेट में भी होता है। द अमाउंट इन दिस फंड्स continue to be accumulated from year to year and normal paid to employees at the time of retirement। जाहिर बात है जब आप जॉब कर रहे हैं, सपोज आज आप जॉब कर रहे हैं तो साथ के साथ आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट हो रहा होता है। जब डिडक्ट हो कि जब आप 60 ईयर का सपोज आप रिटायर होते हैं तो एट द एंड आपको सारी की सारी अमाउंट पे कर दी जाती है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस द अमाउंट इज पेड टू हिज फैमिली। हाँ, अगर वो एम्प्लॉय मर जाता है ड्यूरिंग द सर्विस, सपोज उसकी डेथ हो जाती है तो उसको अमाउंट सारी किधर जाएगी, वो सारी सारी उसके फैमिली को पे कर दी जाती है। वो यही कह रहा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस द अमाउंट इज पेड टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली को दे दी जाती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सुपर एनुएशन फंड है ये भी वैसे ही होगा जैसे हमारा ग्रेजुएटी फंड था, लेकिन इसमें क्या होता है हम किस्तें बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड पेंशन। अब जब आप रिटायर होते हैं तो आप मंथली बेसिस के ऊपर पेंशन मिल रही होती है। Superannuation funds are also maintained by the organization to provide benefit to their employees after retirement। ये भी जैसे वो हमने पहले ग्रेजुएटी फंड पढ़ा, ये भी क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको सुपरएनुएशन फंड दे दिया जाता है इन शेप ऑफ पेंशन। द अमाउंट इन दिस फंड इज कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर कुछ पोर्शन अपनी कभी प्रॉफिट्स में से इसके अंदर शेयर कर रहा होता है। These amounts are paid to the employees as annuities। annuity जैसे आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा, annuity क्या होती है, हर साल सेम हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन शेप ऑफ कैश इनफ्लो। 1000 फर्स्ट ईयर, 1000 सेकंड ईयर, 1000 थर्ड ईयर, यानी एन्युटी कहते हैं सेम कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है। इसी तरह आप जो उनसे पेंशन होती है आपको पता होगा उसके अंदर क्या होता है, हर महीने हम सेम अमाउंट रिसीव करते हैं। हर महीने सपोज फॉर एग्जांपल 6000 रिसीव करें, नेक्स्ट मंथ 6000 6000 6000, ये वो कहता है the amount in this is continuously contribute। These amounts are paid to the employees as annuities or pension after their retirement or if they become invalid before retirement or their families in case of death। यानी अगर वो उसकी फैमिली को पे कर दी जाती है अगर वो एम्प्लॉय डेथ कर जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है व्हाट इज असेसमेंट। कि असेसमेंट कहते किसे हैं, यानी किसी भी चीज को एवेल्युएट करना। जैसे हम आपको कहते हैं आपने मिड का पेपर दिया है, आप हमें बताएं आपके कितने नंबर आ जाएंगे। आप कहते हैं सर जी हमारे 20 में से फॉर एग्जांपल कहते हैं 10 आएंगे।
अब आपने अपना खुद से असेस किया, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। फिर हम उस पेपरों को खुद चेक करते हैं कि आया कि जो आपने स्टूडेंट ने बताया आया कि वो सही भी हैं या नहीं। फिर उसके अंदर हम मजीद चेंजिंग कर रहे थे, नहीं जी इसको मजीद आप दोबारा चेंजिंग करके दोबारा बताएं। इसी तरह टेक्स्ट में भी क्या होता है, असेसमेंट ऐसे होती है, असेसमेंट को प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड अमेंडमेंट असेसमेंट। मैंने आपको कहा पहले असेस करें, अपनी इनकम बताएं, अपने एक्सपेंसेस बताएं। आपने कहा ये है, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप दोबारा इसको रीअसेस करें, यानी दोबारा इसको कैलकुलेट करें। फिर इसको होती है अमेंडमेंट, यानी उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स, चेंजिंग क्या की है। आपने कहा मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं इतने नहीं है, फिर से दोबारा आप इसको रीअसेस करें, आप फिर दोबारा रीचेक किए, फिर कहा सर जी अब इतने आ जाएंगे, दैट इज अमेंडमेंट। अब ये दिस इज अमेंडमेंट असेसमेंट, ठीक है। अब वो कहता है असेसमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द डाटा ऑफ अ पर्सन income, expenses, tax payment, which help in calculating his final tax liability, is checked either by the person himself or by the tax department। यानी वही बात है, असेसमेंट हम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आया कि वो जो सी आपने इनकम और एक्सपेंस बताए हैं, जहां से हम आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो हो सकता है कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले खुद से कैलकुलेट करें, हो सकता है सेल्फ असेसमेंट हो, यानी आप खुद हम आपको दे दें, यानी भी आप खुद से कैलकुलेट करें, अपने इनकम बताएं, हमें एक्सपेंस बताएं। फिर टैक्स वाले इस चीज को चेक कर रहे होते हैं कि आया कि आपने हमें सही भी बताया है या नहीं बताया। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सही नहीं बताते, हम आपको कहते इसको आप दोबारा रीअसेस करें, फिर आप कहते नहीं मेरी इनकम 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख है, फिर 2 लाख जब वो की, दैट इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स के अंदर चेंजिंग करना, आपने फिर मजीद उसके अंदर चेंजिंग की, फिर जो असेसमेंट हुई दैट इज अमेंडमेंट असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा, यानी वो साल जिस साल आपकी इनकम को हम असेस कर रहे हैं, कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है। अब लेकिन ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, शुगर सेक्टर का कुछ है, टेक्सटाइल सेक्टर का कुछ है, कॉटन इंडस्ट्री का कुछ है, कहीं का 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, कहीं का 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ का 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन होता क्या टोटली मंथ कितने होते हैं इसके अंदर, 12 मंथ्स होते हैं। अब वो असेसमेंट ईयर होता है जिसके अंदर आपकी इनकम हम हर चीज को असेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो यही कहता है असेसमेंट ईयर मीन पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द जस्ट नेक्स्ट फॉलोइंग द इनकम ईयर, यानी जब भी आपका न्यू टैक्स स्टार्ट हो जाता है वो टोटल 12 मंथ वहां से, जैसे 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2011, सपोज यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्लोज कब होगा 30 जून 2012 को, यानी टोटल 12 मंथ होंगे। इसके अंदर आपकी इनकम एक्सपेंसेस जितनी आपकी पेमेंट्स वगैरह बन रही थी उसको हम असेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जैसे कि आपको पता है ये क्या होती है, जैसे कि हम वो इनकम होती है जो कि हम पाकिस्तानी लैंड से ड्राइव कर रहे होते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप कोई जमीन आपने इसको दी, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां से जो भी इनकम आपको हो रही होती है वो कहलाती है एग्रीकल्चर इनकम, जो वैसे टोटली एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। अभी इधर से आप पढ़ते हैं वो क्या क्या पॉइंट कह रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम मींस इनकम, ऐसी इनकम जो कि ड्राइव की हो फ्रॉम लैंड, जाहिर बात है वो लैंड से ड्राइव की गई हो, ऐसा ना फैक्ट्री बना कर आप बैठे हो आपको ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो, भाई वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम वही होगी जो कि लैंड से हो और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, ऐसा ना आपने वहां पे फैक्ट्री बनाई और कहें जिस एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में वही 3 पॉइंट है जो कि अहम है। वो कह रहा है ड्राइव फ्रॉम लैंड, कि वो लैंड से ड्राइव की गई हो। नेक्स्ट वो कहता है लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, वो जो सी लैंड है वो कहाँ पर, पाकिस्तान में। वैसे ना आपको ये लैंड जो है अमेरिका में है, तो वो इनकम वो फिर वहां की होगी, नॉट इन पाकिस्तान। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑफ पाकिस्तान, तो लैंड भी एक तो इनकम लैंड से ली गई हो, लैंड कहाँ पे हो, पाकिस्तान में हो, और लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। जो मैंने पहले कहा एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो लैंड यूज हो रही है, ऐसा ना फैक्ट्री बनाकर बैठे हो जिससे वहां से जो इनकम हो रही है दिस इज द एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें क्या है 3 पॉइंट है, हम वो लैंड से इनकम ड्राइव की गई हो, सेकंड था कि लैंड कहाँ पर हो, पाकिस्तान में हो, तीसरा था वो कहता लैंड किस पर्पज के लिए यूज हो रही हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। चले एनी इनकम ड्राइव्ड एज rent revenue or from sale of any produce which is grown on a Pakistani land। देखा वही बात on a Pakistani, ये अहम वर्ड है इसके अंदर। इन पाकिस्तानी लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, यानी कोई भी इनकम जो कि आप ड्राइव करते हो रेंट से, कोई आपने जमीन किराए पे आगे किसी को दी हुई है, तो रेवेन्यू कोई भी आपने सेल करते हो, आप कोई भी प्रोडक्शन किया उससे आपने सेल की, उससे आपको इनकम हुई, वो क्या होगी, और वो पाकिस्तानी लैंड से हो, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। However, it is necessary, इसमें वो कहता है ये बहुत जरूरी है, टू अंडरस्टैंड दैट लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये बहुत अहम है, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैंड यूज हो रही हो।
which means that some human labor and efforts are necessary to be employed। हाँ ये भी है कि उसके अंदर तमाम लेबर की एफर्ट लग रही हो। अगर वो लेबर की एफर्ट लग ही नहीं रही, वो लेबर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। फिर एग्रीकल्चर इनकम वाले यही कहते हैं, जो सा हेड है टैक्स वाले, कि वो जो सी जमीन है वहां के ऊपर आप ह्यूमन लेबर आपने एम्प्लॉय की हो, उनको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वो कहता है if human labor effort is not involved in agriculture land, that income derived from this land is not agriculture income। देखा ना, वो कहता है अगर ह्यूमन एफर्ट ही इन्वॉल्व नहीं है एग्रीकल्चर लैंड में, तो अगर इनकम वहां से अगर आप ड्राइव करते हो, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं व्हाट इज बोर्ड के। बोर्ड क्या है? दिस इज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सिंपल। बोर्ड में जब भी टैक्स में पूरी बुक में जहां पे भी कोई वर्ड आएगा बोर्ड से, बोर्ड में ये अथॉरिटीज दी गई हैं, बोर्ड मीन्स होगा, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हर जगह पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं आएगा, बस बोर्ड का लफ्ज आएगा। इसी वजह से आप इसको अंडरस्टैंड करें, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस। कि बिजनेस क्या है? जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिजनेस क्या, आप कोई भी बिजनेस करते हो उसका मकसद क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे भी वो यही कहेगा कि बिजनेस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट शामिल है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वो तो फिर आप सैलरी वहां से ले रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, वहां पे काम कर रहे हो, वहां से अपनी सैलरी ले रहे हो। लेकिन जो बिजनेस होता है वो तो आप खुद कर रहे हो, आपका अपना कैपिटल होता है, या आपने डेट फाइनेंसिंग वगैरह ली होती है, तो उससे आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस के अंदर वो कहते हैं तीन चार चीजें होती हैं, एक ट्रेड है, एक कॉमर्स है, एक मैन्युफैक्चर है, एक प्रोफेशन है। इन तमाम का हम डिटेल में हम नीचे डिस्कस करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग टर्म्स। वो कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड। ट्रेड है क्या? मैं सिंपल आपको बता दूं, परचेज सेल। आपने कोई चीज मोबाइल परचेज कर रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं उसके अंदर की, आपने बनी बनाई चीज कहीं से ली है, उसको फर्दर आगे सेल कर दिया है, ये क्या होगी? हमारी ट्रेड। सिंपल परचेज सेल, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेड मीन, अब यहाँ से पढ़ते हैं, एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज टू अर्न प्रॉफिट। ये टू अर्न प्रॉफिट क्यों हम यूज कर रहे हैं? वो बिजनेस का मकसद ही अर्न प्रॉफिट है। वो कहाँ से अर्न प्रॉफिट कर रहा है? वो ट्रेड से कर रहा है। ट्रेड क्या है? जो कि दो लोगों के या दो से ज्यादा में परचेज सेल की होगी, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। चलें, अब नेक्स्ट है कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? क्या है? इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो अदर एक्टिविटीज। यानी ट्रेड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी अदर एक्टिविटीज क्या होंगे? वो इंश्योरेंस होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तमाम अदर फैसिलिटीज जो कि हम मार्केटिंग वगैरह जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वो कहता है इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड। हाँ, ट्रेड शामिल है बल्कि और भी चीजें शामिल है। वो क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बट ऑल आल्सो ऑल अदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सच एज, वो क्या थे जो मैंने पहले बताया, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, बैंकिंग। ये तमाम अदर फैसिलिटीज हैं जो कि ट्रेड से भी मजीद, हम ट्रेड के अंदर, इसके अंदर है ही है कॉमर्स के, लेकिन इसके अंदर अदर फैसिलिटीज भी हैं। वो क्या थी उसने बताई? ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योर, हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस की भी दे रहे हैं, वेयर हाउसिंग की भी दे रहे हैं, मार्केटिंग की भी है इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर। अब ट्रेड में क्या था, मैंने उधर कहा था कि मैन्युफैक्चर नहीं होगी वहां पे चीज। ट्रेड में सिंपल परचेज कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, परचेज है। लेकिन मैन्युफैक्चर में क्या होगा? आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। जैसे कि आप कास्ट ऑफ में आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर फिनिश गुड्स उससे बन रही होती है। जैसे मैन्युफैक्चर के अंदर पे हम सबसे पहले कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर इनपुट बनते हैं, फिर वर्किंग प्रोसेस, फिर वो उस चीज की ग्रेटर वैल्यू हो जाती है कस्टमर के लिए। जाहिर बात है, हर स्टेज में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू एडिशन हो रही होती है। हर स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन होती है। रॉ मटेरियल होता है, फिर वैल्यू ऐड होती है, वर्क इन प्रोसेस बनता है, फिर वैल्यू एडिशन होती है, फिनिश गुड्स बनती है। अब इसको यहाँ से देखते हैं, व्हाट इज मैन्युफैक्चर? द टर्म मैन्युफैक्चर सिंपली मीन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट सच एज रॉ मटेरियल into a form which has greater value to customer। वही वाली बात जो मैं अभी बताया, हम ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं? चेंज करना, इनपुट को चेंज कर रहा है, रॉ मटेरियल को, into a form which is greater value। into a form greater value किस चीज की होगी? फिनिश गुड्स की। अगर मतलब कस्टमर को हम रॉ मटेरियल तो नहीं दे सकते, उसको हम क्या देंगे? फिनिश गुड्स देंगे। उस फिनिश गुड्स की ग्रेटर वैल्यू होती है बनिस्बत इनपुट से। तो ये कहता है हमारे पास इनपुट होता है, हम इनपुट को अंदर वर्किंग करते हैं, उसकी वर्किंग प्रोसेस होता है, तो उससे हमारी क्या बनती है? फिनिश गुड्स बनती है, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होती है कस्टमर की नजर में। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशन और वोकेशन।
इट इज ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स सम, इसका पहले मैं आपको बता दूं प्रोफेशन और एजुकेशन। प्रोफेशन में आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, इनके लिए उनको स्किल्स चाहिए होते हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो वोकेशन होता है उसके अंदर कोई स्किल्स, कोई क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं दरकार होता। उसमें क्या होता है, जैसे हम हमारा सिंगर होते हैं, उसके लिए कुछ उसको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसमें गाना गाने के लिए? नहीं। अगर प्लम्बर को क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं। इलेक्ट्रिशियन जो हमारे गलियों के अंदर दुकानें खोले बैठे उनको क्वालिफिकेशन होती है? नहीं। ठीक है ना? तो वो जो अर्न कर रहे थे अपने बिजनेस है उसको हम कहते हैं वोकेशन। इट इज ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना? द इनकम इज जनरेटेड बाय मैनुअल स्किल्स, यानी वहां पर आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें? वो है डॉक्टर, लॉयर एंड नर्स। यानी ये वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तो वो जो इनकम जनरेट कर रहे होते हैं वहां से, दैट इज प्रोफेशन। उसके बाद वेयर आर लोकेशन इज जनरली अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ पार्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स। उनको स्किल, उनको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए वहां पर, उनको अपने फील्ड से रिलेटेड स्किल चाहिए होते हैं। सिंगर उसको उसके लिए क्वालिफिकेशन के वो एमकॉम हो, वो एसीसी हो नॉट, उसको सिर्फ स्किल आना चाहिए सिर्फ गाना गाने की। तो वोकेशन में हम क्या होते हैं, वहां पे हमारी क्वालिफिकेशन जरूरी थी प्रोफेशन में, लेकिन वोकेशन में क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, बल्कि उसके पास स्किल होनी चाहिए। Whereas vocation is generally a job that requires a particular set of skills acquired through experience or through training, but not necessarily dependent on a college degree. इसके अंदर college degree नहीं होती कि ये वाली इसके बाद डिग्री होगी तो फिर ये परफॉर्म कर सकता है ये जॉब। दिस वुड इंक्लूड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सिंगिंग, ये तमाम वो शोबे हैं जिसके अंदर कोई भी नेसेसरी कोई कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए होती हमें। ठीक है, हमारे पास स्किल होंगे तो हम वो जॉब परफॉर्म करेंगे, हमारा वो बिजनेस होगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज कंपनी। एक कंपनी क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंपनी मींस कंपनी इज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है, जो भी हमारे 1984 में कंपनी के बारे में कहा गया दैट इज कंपनी। उसको नेक्स्ट पॉइंट होगा बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म अंडर एनी लॉ। कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो बन रही होती है अंडर एनी लॉ ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज आल्सो अ कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास मुदारबा। मुदारबा भी एक कंपनी के अंदर हमारी डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमारा स्मॉल कंपनी। ये तमाम वो हेड्स हैं जो कि हमारी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत आते हैं, जो कि कंपनी की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इन आवर कंट्री देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो मुल्क के अंदर 3, आपने बिजनेस इंट्रोडक्शन बिजनेस में पढ़ा होगा, 3 तरह के हमारे बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, अपना अकेले सोल मालिक हो। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, आप और मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप कर रहा है, कोई काम कर रहा है, दैट इज पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सेपरेट, अलग से इसकी आइडेंटिटी है, इसके मालिक और है, कंपनी अलग है, लायबिलिटीज, एसेट, हर चीज इसकी सेपरेट होती है, वो कंपनी होती है। द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इसका अपनी एक लीगल एंटिटी है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। A company is treated to be a separate business entity apart from its shareholder। जैसे मैंने पहले कहा, टैक्स पर्पस की कंपनी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। शेयर होल्डर, कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को अपने शेयर के ऊपर डिविडेंड के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे होते हैं अपने शेयर की परचेज एंड सेल के ऊपर, कंपनी वाले कॉर्पोरेशन टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो इसी वजह टैक्स वाले कहते हैं ये बिल्कुल सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, सेपरेट। इसके रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स। पहले हम इनकम टैक्स को डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स या इनकम टैक्स प्रैक्टिस टैक्स ये 2019 एंड 20 बाय मौजम मुगल की, मौजम मुगल। इसका जब हम बाद में इसको सेल टैक्स को भी इन्हीं की बुक से डिस्कस करेंगे, सेल टैक्स बाय मोहम्मद मौजम मुगल से। ओके, थैंक यू।